Dear students, good morning. In the first video we have discussed about the importance of the chemistry, and in this video we will study about the nature of matter. So first of all, question arises, what are the matter? So dear students, everything around us, either it can seen or not, or not considered in the matter. So the everything which is having mass and occupy the space are called the matter. Like that, it is a marker with a solid state, it can be seen. Similarly, if we consider the water it also can seen, but the air is also the matter, but it cannot be seen. Similarly, the living and non-living things, living and non-living things are also considered in the matter. In the case of living things, that's the VR itself, human being, trees or insects, animals, all these are considered in the matter. In case of the non-living things like stones, calcium chloride, marker, table, all these are non-living things, but these are considered in the matter because all these things having the mass and occupy the space. So matters are, we can say that matters are those things which occupy the space and having the mass. Now there are two criteria for the classification of the matter. So classification of matter. मैटर को क्लासिफाइड करने की दो आधार हैं. वन इज फिजिकल स्टेट, सेकेंड स्टेट on the basis of composition. So first we study the physical state. On the basis of physical states, matter can be divided into three parts: solid, liquid and gas. You have also studied the conversion of one physical state to another physical state in the earlier class, like solid convert into the liquid is known as fusion और melting. कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन. लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन. सिमिलरली conversion of liquid to gas is known as
बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, बाष्पीकरण, conversion of gas into liquid, it is known as the condensation, संघनन, and third stage conversion of solid to gas, ये आपका कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, और इसको हिंदी में अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, एंड गैस टू सॉलिड, बोथ प्रोसेस आर नोन एज द सब्लिमेशन। दे आर द कन्वर्जन ऑफ वन फेज टू अनदर फेज, which we have studied in the earlier classes. Now, how the particles are arranged in solid, liquid and gas in any matter. So now we see the arrangement of particles in the solid, liquid and gaseous state. When we see the arrangement of particles, we find that in the solid states, there is regular arrangement of particle, and particles are near to each other. In the gaseous state, particles are more far away, whereas in liquid state, the distance between particles in between the solid and gaseous state. On the basis of this arrangement of particles, we can decide various properties of these matter in the different physical states. By see the arrangement of particles in the solid state, we find there is density is more, because density more, particles एक दूसरे के बहुत पास पास हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। दूसरा, देयर इज नो फ्री मूवमेंट, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, दैट मीन्स नो फ्री मूवमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स एक दूसरे पास होने की वजह से इनको हम और ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते, यानी इनकी कंप्रेसिबिलिटी होगी वो नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल यानी बहुत कम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यदि हम गैसियस स्टेट में देखें, सेम मैटर के गैसियस स्टेट में देखें, तो गैसियस स्टेट में हम देख रहे हैं पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, यानी इनकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज वेरी लेस, डेंसिटी वेरी लेस। सेकंड, मूवमेंट, दे कैन फ्रीली मूव इन एनीवेयर, देखो फ्रीली मूव इन एनीवेयर। कंप्रेसिबिलिटी, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो अगर हम इन पर प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स क्या होगा, पास पास आ जाएंगे, दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी इज मैक्सिमम, कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम। And if all these three properties considered in case of liquid,
तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन लिक्विड स्टेट विल बी इन इंटरमीडिएट, यानी दोनों के मध्य की होती हैं प्रॉपर्टीज। जैसे डेंसिटी हम देखेंगे लिक्विड स्टेट में तो सॉलिड स्टेट से तो क्या होगी, कम होगी, बट गैसियस स्टेट से ज़्यादा होगी। मूवमेंट देखें तो मूवमेंट लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स का सॉलिड स्टेट से ज़्यादा होगा, लेकिन गैसियस स्टेट से कम होगा। कंप्रेसिबिलिटी आल्सो इन बिटवीन द लिक्विड एंड also in between the solid and gaseous state. On behalf of these properties, we can say that solid state, in the solid state, matter have the definite mass or volume and shape. So shape and mass of the solid state is definite, fix होती है. That means mass, volume and shape of solid state is fixed, और गैसियस स्टेट में अपन देखें in the gaseous state, if we take the example of any gaseous state, any gas, like if we see the example of the chlorine gas, nitrogen gas or any gas, if we take a 10 by 10 साइज का एक रूम हम कंसीडर करें और उसमें उस गैस को छोड़ दें, तो गैस क्या करेगी, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। और अगर सिमिलर अमाउंट ऑफ गैस को हम एक 20 बाई 20 साइज का रूम लेते हैं, उसमें छोड़ें, तो गैस क्या करेगी, उसमें भी 20 बाई 20 के रूम को भी कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस का जो वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। पहले उसने 10 बाई 10 का रूम को ऑक्यूपाई किया, फिर हमने जब 20 बाई 20 के रूम में उसको ओपन किया रखा तो उसने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, यानी वॉल्यूम चेंज हो गया। सिमिलरली अगर शेप अपन देखें, अगर हमारा एक रूम तो क्या है, रेक्टेंगुलर है, और एक क्या है, स्क्वायर है, सेम साइज का, तो दोनों में ही क्या करेगा, कंप्लीट ऑक्यूपाई कर लेगा इन द डिफरेंट शेप। दैट मीन्स वॉल्यूम और शेप दोनों ही क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते। लेकिन इन द लिक्विड स्टेट अगर अपन देखें तो क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप इज नॉट फिक्स। इसका अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमने 1 लीटर वाटर लिया, उसको हमने एक रेक्टेंगल कंटेनर में रखा, और सिमिलर अमाउंट ऑफ वाटर को अगर हम एक कोन शेप कंटेनर में रखते हैं तो क्या होगा, पहले उसने रेक्टेंगल शेप लिया, और जब कोन शेप कंटेनर में उसको शिफ्ट किया तो वहाँ पर उसने कोन शेप ले लिया, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स रहेगा, 1 लीटर फिक्स रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम फिक्स होता है बट शेप आर नॉट फिक्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर in different physical state. Matter we consider any matter, either it is sugar, salt, or any matter, calcium carbonate, we consider the any matter in which they have the different conditions. Now the second criteria is the composition.
On the basis of composition, matter can be divided into two parts. There is the pure substance, pure matter, and impure substance. Pure matter means have the definite composition of the atom of element. वे पदार्थ, वे कंपोनेंट, वे कंपाउंड जिनमें एटम ऑफ एलिमेंट्स का डेफिनेट या एक निश्चित कंपोजिशन होता है, वो किस में आएंगे? प्योर मैटर में आएंगे. दैट मीन्स दे हैव द डेफिनेट कंपोजिशन. और इन मैटर्स को जिनमें एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, हम टू पार्ट में अपन बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. प्योर को एलिमेंट्स, one is the element and second is compound. Elements means एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स का हमेशा प्योर होता है. इफ वी कंसीडर द एनी एलिमेंट लाइक आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, any metal, non-metal, all these are the pure. And also the molecules which are made up of atoms of same element, यानी वे मॉलिक्यूल जो कि सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट से बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. Hydrogen is made up of two atoms of hydrogen element. Oxygen made up of two atoms of oxygen element. Similarly, if we consider the nitrogen, nitrogen is made up of two atoms of nitrogen element. So, the molecule made up of atoms of same element is also considered in the elements, and it is also the pure. And the other elements are iron, magnesium. So all elements are the pure elements or the pure matter. Second are the compounds. Compounds, like if we see water, carbon dioxides, so the basically these are also the molecule, and combination collectively you can say that same type of molecules collectively are called the compounds. So the molecules which are made up of different atoms of different element, or we can say that the atoms of different element. Like that, water is made up of hydrogen element and oxygen elements. So this is the molecule or compound made up of different elements, but all both example at the definite composition. That means there is two hydrogen atom, one oxygen atom. In all molecules the composition is definite, fix होता है, निश्चित होता है, definite होता है. Similarly, in the carbon dioxide there is also the one carbon atom or two oxygen atoms. That means they are the definite composition. In all molecules
present in a compound. So these are also the pure. So on basis of these examples we can say pure matters are those substances which have the definite composition. Now we see about the impure matter. Impure matter, that means they have the not have definite composition. They are the different composition of the substances. First thing is different composition. And impure matter is also known as the mixtures. तो when mixtures are formed, mixtures कब बनते हैं? जब अपन दो या दो से अधिक अलग अलग कंपाउंड्स को डिफरेंट रेशो में मिक्स करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मिक्सचर्स. एंड दे आर द impure matter. That means the mixtures not have the definite composition. Mixture no definite composition. No definite composition. And on the basis of nature of the mixture divided into two parts. That means homogeneous mixture and heterogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? यानी समांगी मिश्रण भी बोलते हैं. इनको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? समांगी मिश्रण. और हेटेरोजीनस विषमांगी मिश्रण. होमोजीनस मिश्रण क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अलग अलग रेशो में डिफरेंट रेशो में मिलाया जाए लेकिन मिक्सचर में क्या हो? यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो. होमोजीनस का मतलब क्या हुआ? होमोजीनस मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन. यूनिफॉर्म composition. Okay. For example, मान लीजिए हमने एक गिलास में या किसी कंटेनर में हमने क्या लिया? वाटर लिया और इसमें अपने सॉल्ट डाला. तो जैसा कि हम जानते हैं, देखते हैं, सॉल्ट कंप्लीटली मिक्स हो जाता है पानी में. तो ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अब सॉल्ट को हम कितने ही अमाउंट में मिला सकते हैं? 5 ग्राम भी. जैसे हमने 100 ml मान लीजिए हमने इसमें वाटर लिया, 100 ml वाटर लिया और उसमें फर्स्ट हमने मान लीजिए 5 ग्राम सॉल्ट डाला, फिर 10 ग्राम डाला तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगा. दैट मीन्स अगर हम इसका कंपोजिशन दोनों का चेंज करते जा रहे हैं लेकिन ये कम्प्लीटली मिक्स हो रहा है. कंप्लीटली मिक्स हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज द होमोजीनस मिक्सचर एंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स. हम इनके जो कंपोनेंट्स हैं इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. मिक्सचर्स के को अपन फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. जैसे अगर सॉल्ट मिलाने के बाद हम पानी को गर्म करें तो क्या होगा? वाटर तो वेपोराइज हो जाएगा और सॉल्ट
नीचे बच जाएगा। यानी वाटर वेपोराइज होकर हम उसको अलग से कंडेंसेशन द्वारा, संघनन द्वारा अलग कर सकते हैं और नीचे क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो इस तरह फिजिकल मेथड द्वारा हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए पानी में अपन शुगर घोलते हैं, तो यह वेरियस जैसे मिक्सचर्स विच आर द होमोजीनस इन नेचर, लाइक दैट सॉल्ट का देखा। ऐसे एयर आल्सो है होमोजीनस मिक्सचर इन विच देयर नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, oxygen is present, carbon dioxide, water vapors, all these things present in the air. So air is also the homogeneous mixture, and different gases of the air can be separated according to their boiling points. So the homogeneous mixture can be separated by the physical methods. Now we see the second type, heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture are those mixtures or different substances which are not at the uniform composition. That means in the homogeneous mixture there is no uniform composition. यानी ऐसे मिश्रण जिनका के यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। मीन्स अगर अभी हम एग्जाम्पल लें, मान लीजिए अपन ने एक वॉच ग्लास लिया, ठीक है, और इसमें अपने वॉच ग्लास लिया और इसमें हमने क्या क्या मिलाया है, सैंड, मिट्टी मिला दी, देन सॉल्ट मिला दिया, और मान लीजिए हमने इसमें अमोनियम क्लोराइड मिला दिया। इस मिश्रण में क्या क्या है, सैंड, सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, और इनका क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। यानी अपन मिश्रण को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसमें सॉल्ट मिला हुआ है, सैंड मिली हुई है, तो जिसको अपन देख के ऐसे पता लगा पाएँ कि भाई इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो वो क्या हो गया, मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुआ। अब इस मिश्रण को भी हम फिजिकल मेथड्स के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं इनको। जैसे अगर मान लीजिए हम इस मिश्रण को गरम करते हैं, इसमें स्टैंड भी लगा देते हैं अपन, ये आपके आयरन सीव होती है, आयरन की जाली, इस पर हमने इसको वॉच ग्लास को रखा और इसको अपन ने क्या किया, इस पर एक फनल रखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये अपन ने इस पर क्या लगा दी, फनल लगा दी, फनल कीप लगा देते हैं, और इसकी जो टॉप होती है इसको हम कॉटन से बंद कर देते हैं। कॉटन से इसको बंद कर दिया। अब हम इसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा कि इन सभी कंपाउंड्स की डिफरेंट नेचर होती है। जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ कंपाउंड जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं, कुछ लिक्विड से गैस में, और कुछ डायरेक्ट सॉलिड से गैस में होते हैं। तो यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से गैस में चेंज होता है। ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। ऐसे आपने और भी देखा होगा, जैसे अपन देखते हैं नेपथलीन की गोलियां, कपूर की गोलियां होती हैं, जो अपन सर्दियों में गर्म कपड़ों में लगाते हैं, गर्मियों में
तो उससे क्या होता है कि जब वापस हम उनको देखते हैं तो कुछ भी अपने को नहीं मिलता, यानी जो सॉलिड था वो डायरेक्ट किसमें, गैस में चेंज होके उड़ गया। सिमिलरली ऐसे कंपाउंड जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं वो क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि जब अपन इसको हीट करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या करेगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होगा, और गैस डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। गैस डायरेक्टली ठंडा होकर किस में, सॉलिड में चेंज होगा। तो इस तरह से जो अमोनियम क्लोराइड है ये किस पे, फनल के अंदर की जो वॉल है लेयर उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। इसको हम सेपरेट अलग हटा के फिर हम इसको खुरच लेते हैं स्कैल्पर से, ब्रश से। देन इसमें आपके क्या बच गया, सैंड और सॉल्ट। फिर हम इसको और हीट करेंगे तो सॉल्ट क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट करके इसको हम सेपरेट कर लेते हैं सॉल्ट को, और लास्ट में आपके क्या बच जाएगा, सैंड बच जाएगी। तो बाय दिस फिजिकल प्रोसेस this mixture can be separated. So these are the different types of mixtures, homogeneous or heterogeneous, which can be separated by the physical method. Now in the next video we will share about the different physical and chemical properties of the matter. Thank you.